Good morning, students. Welcome to the class of economics. We are studying chapter 7, that is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. So we studied about AD curve, and today we will study components of AD. So components of AD are so easy. There are two types of economy. First is closed economy and second is open economy. So AD means aggregate expenditure, as I have already explained. So in a closed economy, there are two sectors: producer sector, closed economy with two sectors. There are two sectors, producer and consumer. So AD is equal to, producers will do investment, consumer will do C, consumption. So AD is equal to C plus I. But in a three sector, there will be government also. So AD is equal to C plus I plus G. And in a four sector economy where there are rest of the world also, then AD will be equal to C plus I plus G plus H minus M. So we have already studied these things in the national income chapter, both and all the full forms you should know: government expenditure, and this is net export. And but in this chapter you have to remember that the expenditure is not actual, the expenditure is planned. Today we will study page number 181, concept of aggregate supply. Aggregate supply refers to aggregate production as planned by the producer during an accounting year. So this point is also we have studied, and we studied that aggregate supply is equal to Y, and diagram is 45-degree line, and on this 45-degree line Y is equal to AS. At every point Y is equal to AS, so it is aggregate supply. Here we will show income, and on y-axis we will show aggregate supply. Today we will study consumption function. Household consumption expenditure is an important component of aggregate demand in the economy. It is directly related to the level of income. Higher Y leads to higher C and vice versa. जितना ज़्यादा income होगी उतना ही ज़्यादा consumption होगा. The functional relationship between C and Y is called consumption function. It reveals the behavior of household consumption function expenditure with respect to the level of income in the economy. Studying the behavior of C with respect to Y, the economists have identified the following points as of central significance. First point है कि हमेशा एक minimum level of expenditure होता है जिसको हम कहते हैं C बार. मतलब इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए अगर इनकम जीरो भी हो जाए तो टोटल कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा. अगर इनकम जीरो है तो भी थोड़ा बहुत कंजम्पशन होगा, दैट इज फॉर एग्जांपल 30. इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार. कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा. मान लीजिए इनकम 50 हो गई तो कंजम्पशन भी बढ़ के क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा. इस तरह से अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा. फिर मान लीजिए इनकम हो गई 100 तो फिर कंजम्पशन बढ़ेगा और ये हो जाएगा 100. इस तरह से ये अपना कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन फंक्शन बनेगा. और अगर वापस इनकम बढ़ेगी अगेन कंजम्पशन बढ़ेगा. इस तरह से इनकम हमेशा कंजम्पशन से पॉजिटिवली रिलेटेड होती है. और एक बात आप ध्यान दें, अगर इनकम 50 से मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं कंजम्पशन को 40 से इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों में रेशियो हम सेम मानते हैं. वी एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड इनकम इज कांस्टेंट. इनके प्रपोर्शन को हम सेम मानते हैं. सो लुक एट पेज नंबर 183, last point. The entire increase in Y during a particular period is not converted into C. जितना इनकम बढ़ता है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता. अगर इनकम 50 से बढ़ेगी तो कंजम्पशन 40 से बढ़ेगा. आप देख सकते हैं, क्योंकि पीपल सारा सेव नहीं करते. ए पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल, सो दैट द रेट एट विच C इंक्रीजेज ऑफन लैग्स बिहाइंड द रेट एट विच Y इंक्रीजेज. जिस रेट से C इंक्रीज होता है उस रेट से Y इंक्रीज नहीं होता. C हमेशा Y की रेट से कम होता है. मतलब अगर इनकम 50 से बढ़ेगी तो कंजम्पशन 40 से बढ़ेगा या 30 से बढ़ेगा.
टेबल 3 में देखिए 20 मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, सी बढ़ रहा है वाई के बढ़ने से, और जो रेट ऑफ चेंज है सी का वो वाई की रेट ऑफ चेंज से कम है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए आप सी कर्व कैसे बनाएंगे। अभी हमने पढ़ा कि ये तो इनकम लाइन होती है, इसको आप हमेशा याद रखें, 45 डिग्री लाइन ये अपनी इनकम लाइन होती है। और हमने पढ़ा कि जीरो लेवल पर भी थोड़ा बहुत कंजम्पशन होता है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हमारा जो सी कर्व है वो 30 से शुरू होगा और इसको कट करते हुए निकलेगा, क्योंकि एक पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसके बाद जो सी होता है वो वाई से कम हो जाता है। सो दिस इज वाई लाइन एंड दिस इज सी लाइन। शुरू में इनिशियली सी विल बी मोर देन वाई बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड later on C will be less than Y because people start saving. Slope of C line, marginal propensity to consume. Slope of C line needs some elaboration. It refers to the rate at which C increases in response to a given increase in Y. It increases the proportion of additional income that goes to consumption. इसका मतलब होता है कि स्लोप ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं हम। किसी भी कर्व का अगर हमें स्लोप निकालना है तो चेंज इन एक्स वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस होता है। तो किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है तो हम इसमें क्या चेंज आ रहा है उसको इससे डिवाइड करते हैं। तो इसलिए कंजम्पशन कर्व का स्लोप होता है डेल सी अपॉन डेल वाई, जिसको हम एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन, मतलब चेंज इन इनकम में से कितना पार्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है। This is measured as the ratio between del C and del Y. This is known as marginal propensity to consume, and it is also the slope of C line. For example, in our example, the del C is always 40. Del C means change in C, 70 minus 30, 40, and del Y is 50. It means MPC is 40 upon 50, 0.8. This is the frequency of consumption. APC and MPC are different concepts. APC का मतलब होता है C upon Y और MPC का मतलब होता है del C upon del Y. APC is the ratio between consumption and income, while MPC is the ratio between change in consumption and change in income. APC shows consumption per unit of total income, whereas MPC shows consumption per unit of additional income. Slope of straight line C का function is constant, so that MPC is constant. हमने पढ़ा अभी slope of C line MPC हमेशा constant होता है, इसीलिए ये जो C line है ये straight line है। इसको linear consumption function भी कहते हैं। और linear consumption function क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका slope constant है। और इसका slope क्या है? इसका slope है marginal propensity to consume. Algebraic presentation of C function. Algebraic presentation का मतलब है कि C का इक्वेशन क्या है, कंजम्पशन निकालने की इक्वेशन है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ऐसे C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पर B का मतलब होता है एमपीसी, C बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब हमने जो अभी टेबल बनाई थी उसके अंदर C बार तो था 30 और एमपीसी था 0.8। अब हम इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दें तो हमारी कंजम्पशन इक्वेशन बन जाएगी 30 प्लस 0.80 y। अब अगर मैं इसमें y की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप, अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो c आएगा 30 प्लस 0.8 इंटू 0, 30 आ जाएगा। हमने 30 लिया था 0 पर y, 0 पर कंजम्पशन। अगर y में 50 लूंगा तो देखिए क्या आएगा, 30 प्लस 0.8 इंटू 50, 70 आएगा। 70 था हमारे एग्जांपल में। अगर y में 100 लूंगा तो देखिए c कितना आएगा, 30 प्लस 0.8 इंटू 100 तो आएगा 110। तो हम कंजम्पशन फंक्शन से कोई से भी इनकम का कंजम्पशन निकाल सकते हैं, दैट इज नॉन एज कंजम्पशन फंक्शन। एमपीसी मतलब डेल सी अपॉन डेल वाई, सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। एचओटीएस में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन गिवन है, सी बार 200 है, एमपीसी 0.5 है और वाई 1000 है, तो सी कितना आएगा 700। वुड कंजम्पशन फंक्शन भी लीनियर इन केस एमपीसी इज कांस्टेंट? यस इज द आंसर। मैंने आपको बताया अगर किसी भी
लाइन का एमटीसी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, तो वो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कहलाएगा और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। नेक्स्ट है सेविंग फंक्शन। इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव। इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, क्योंकि जो भी इनकम होती है हम या तो उसको कंज्यूम करेंगे या फिर सेव कर लेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ सी बिहेव्स इन रेस्पेक्ट टू वाई। वी नाउ डिस्कस हाउ एस बिहेव्स विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब हम पढ़ेंगे कि सेविंग का बिहेवियर क्या है। सेविंग का बिहेवियर भी पॉजिटिव है, मगर शुरू में सेविंग नेगेटिव में होगी, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। हमने पढ़ा y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस सी। अब हमने जब y 0 था तो हमने कंजम्पशन कितना माना था, 30, तो देखिए सेविंग क्या आएगी, माइनस 30। जब y 50 है तो s क्या आएगा, 50 माइनस 70, क्योंकि c कितना है 70, तो ये कितना आएगा, माइनस का 20। जब y हमने 100 लिया तो हमारा कंजम्पशन था 110, सो इट विल बी माइनस 10। और जब y हमारा 150 है तो s कितना होगा, 150 माइनस c, 150 माइनस 150, इट विल बी 0। सो इस तरीके से अगर हम सेविंग निकालेंगे तो सेविंग शुरू में 0 लेवल पर माइनस में होती है, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ती जाएगी, और एक लेवल के बाद सेविंग पॉजिटिव भी हो जाएगी। जब आप y 200 लेते हैं तो आपकी सेविंग कितनी आती है, 200 माइनस 190 प्लस का 10। तो इस तरीके से सेविंग शुरू में नेगेटिव होती है और बाद में वो पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरीके से बुक में भी आपको बना के दे रखा है। पहले इसमें इन्होंने सी फंक्शन लिया और उसको फिर एस फंक्शन में कन्वर्ट करा। हम नीचे उसके ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहे हैं। एस फंक्शन एज स्पेसिफाइड इन टेबल 4 रिवील्स दैट s is equal to minus 20 when y is equal to 0. This is because c is equal to 20 when y is equal to 0. We know that c plus s is equal to y, so that if c is equal to 20 then y is equal to 0 and h must be minus 20. कहने का मतलब है दिस इज नॉन एज ऑटोनोमस सेविंग। जब 0 लेवल पर जो सेविंग होती है उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस सेविंग। ये हमेशा माइनस में होगी। इसका माइनस में होने का कारण क्या है, क्योंकि इंसान 0 लेवल पर भी कंज्यूम करता है, और कंज्यूम कैसे करेगा, नेगेटिव सेविंग्स से। उसका मतलब बोरोइंग्स भी हो सकता है या फिर प्रीवियस सेविंग्स में से विड्रॉल भी कहला सकते हैं। एस इंक्रीजेज एस वाई इंक्रीजेज। एस इंक्रीज होता है जब इनकम इंक्रीज होती है, इंप्लाइंग दैट एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। सेविंग हमेशा इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है। एस रिमेन्स लोअर देन वाई। एस हमेशा वाई से कम होगा। कंजम्पशन तो इनकम से ज्यादा भी हो जाता था, मगर सेविंग कभी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। देखो सेविंग 0 है तो ये माइनस 30 है, 50 है तो माइनस 20 है, 200 है तो सेविंग 10 है। सेविंग कभी इनकम से ज्यादा नहीं होती। एंड एस इज आल्सो पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सेविंग शुरू में माइनस में होती है और वो धीरे धीरे इनकम के साथ साथ इंक्रीज होती है। तो सेविंग कर्व भी पॉजिटिवली स्लोप बनेगा, मगर वो नेगेटिव से शुरू होगा। देखिए आप डायग्राम, दिस इज अवर income. When income is 0 then saving is minus 30. When income is 1 then saving is minus 20. When income is 100 then saving is minus 10. When income is 150 then saving is 0. तो सेविंग कर्व कैसे बनेगा, माइनस से शुरू होता हुआ वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यहाँ पर माइनस सेविंग है और यहाँ पर प्लस सेविंग है, मतलब पॉजिटिव सेविंग है। S line starts from minus 20. It indicates the value of S when y is equal to 0. S line is positively sloped and S line crosses y axis when y is equal to 0. इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। जहां पर जिस पॉइंट पर c is equal to y होता है उस पॉइंट पर s is equal to 0 होता है। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। स्लोप ऑफ एस लाइन भी सेम है। अगर आपको किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है तो आपको चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस करना पड़ता है। वाई एक्सिस से हमने दिखा रखा है सेविंग को
और एक्स एक्सिस पे इनकम को। तो स्लोप ऑफ सी लाइन को बोलते हैं एमपीएस, और ये आएगा डेल एस अपॉन डेल वाई, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। सो एस लाइन इज आल्सो ए linear function and it will also be a straight line. Slope of S line is MPS. APS and MPS are different concepts. जैसा वहां पर था वैसा यहाँ पर है। APS का मतलब होगा S अपॉन Y और MPS का मतलब होगा डेल S अपॉन डेल Y। इसी के साथ एक और हम कंक्लूजन पढ़ लें ध्यान से कि APS प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है और APC प्लस MPC इज इक्वल टू 1 होता है। ये बातें आप ध्यान रखें, इनका डेरिवेशन भी अभी आएगा बुक के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेविंग फंक्शन। इसको मैं बिता रहा हूं। सेविंग फंक्शन में फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू H बार प्लस MPS Y। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेविंग फंक्शन। S बार का मतलब होता है 0 माइनस C बार, क्योंकि जीरो लेवल पर जो कंजम्पशन होगा उसको माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन होता है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि ये है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। तो अगर MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC भी हम कह सकते हैं। क्लियर है? ये दोनों बातें समझ में आ गई है आपको? अब देखिए हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, S बार की जगह हम माइनस C बार लिख सकते हैं, क्योंकि 0 माइनस C बार मतलब माइनस C बार। प्लस की जगह प्लस, MPS की जगह हम 1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं, और इनटू Y। और MPC को हमने कंजम्पशन इक्वेशन में क्या माना था? B माना था, B। तो हम इसको 1 माइनस B लिख सकते हैं, B मतलब MPC। तो यही फॉर्मूला आपको बुक में गिवन है, और कैसे निकला ये मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर आप Y की वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे आपके पास सेविंग आ जाएगा। डेरिवेशन ऑफ S फंक्शन फ्रॉम C फंक्शन, मैंने समझा दिया आपको कैसे हम S फंक्शन से C फंक्शन निकाल सकते हैं या C फंक्शन से S फंक्शन निकाल सकते हैं। हम S कर्व से C कर्व भी बना सकते हैं और C कर्व से S कर्व भी बना सकते हैं। बुक में देखिए फिगर 7 पेज नंबर 192। देखिए इसमें आपको एक C फंक्शन गिवन है और जीरो लेवल पर कंजम्पशन है 20, और मैंने आपको बताया अगर जीरो लेवल पर कंजम्पशन 20 है तो जीरो लेवल पर सेविंग होगा -20। तो हमें पहला पॉइंट मिल गया। देखिए अगर उधर 20 है तो नीचे आएगा -20। और हम ये भी जानते हैं, आज हमने पढ़ा कि व्हेन C इज इक्वल टू Y, ऊपर देखिए डायग्राम ए के अंदर C और Y जब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट लिखा हुआ है, उस पॉइंट पर S 0 होगा, क्योंकि S इज इक्वल टू होता है Y माइनस C, और अगर C और Y दोनों इक्वल हैं तो S 0 आएगा। तो देखिए जब इस पॉइंट को हम नीचे मिलाएंगे तो S इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, यानी कि 100 लेवल पर सेविंग 0 है। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए तो हम इन दोनों पॉइंट को मिलाकर सेविंग कर्व बना सकते हैं। S line starts from point which indicates the value of S bar, and value of S bar is equal to value of C bar but with a negative sign। इसलिए हमने क्या करा, ऊपर अगर 20 है तो नीचे -20 ले लिया। S line crosses X axis when C is equal to Y। जब C is equal to Y होता है तो S 0 होता है, तो उस पॉइंट पर S line X एक्सिस को कट करेगी, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। स्लोप ऑफ S line इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ C line। स्लोप ऑफ S line मतलब MPS, स्लोप ऑफ C line मतलब MPC। सो स्लोप ऑफ S line इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ C line, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन गिवन द कंजम्पशन फंक्शन एज अंडर। अगर C इज इक्वल टू BY कंजम्पशन फंक्शन है, इसका मतलब C बार 0 है, तो हम S बार को भी 0 मान लेंगे, तो S फंक्शन बन जाएगा 1 माइनस BY। What value will you assign to the slope of S when the slope of C is 0.6? तो अगर स्लोप ऑफ C 0.6 है मतलब MPC 0.6 है, और हम जानते हैं MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC होता है, तो ये होगा आपका 0.40।
Find S when C bar is equal to 200, MPS is equal to 0.4 and Y is equal to 1000. तो अगर C bar 200 है तो S bar होगा -200 और MPS आपको दे रखा है, Y दे रखा है. इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 200. अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है. देखिए कैसे होता है. MPC और MPS को ऐड कीजिए. MPC का फॉर्मूला del C अपॉन del Y और MPS का फॉर्मूला del S अपॉन del Y. ठीक है. del Y को एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर क्या बचेगा, del C प्लस del S. और आप जानते हैं कि C प्लस S इज इक्वल टू Y होता है, तो del C प्लस del S क्या होगा, del Y. सो इट विल बी del Y अपॉन del Y इज इक्वल टू 1. इस तरह से हम कह सकते हैं कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है. और सेम बात APC प्लस APS के लिए भी होगी, क्योंकि APC प्लस APS करेंगे तब भी 1 आएगा. कैसे आएगा, ये होता है C अपॉन Y और ये होता है S अपॉन Y. एलसीएम Y ऊपर आएगा C प्लस S इज इक्वल टू 1, Y अपॉन Y इज इक्वल टू 1. हेंस प्रूव्ड. सो MPC प्लस MPS भी 1 होगा और APC प्लस APS भी 1 होगा. अब आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है. फर्स्ट HOTS है कि डिस्पोजेबल इनकम है 1000 और कंजम्पशन है 750. आपको निकालना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. तो आपको Y गिवन है और आपको C गिवन है और आपको निकालना है S. तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 250. अब आपको इसमें निकालना है APS. तो APS का फॉर्मूला होता है S अपॉन Y. तो ये आ जाएगा आपका 0.25. कैन APS एवर बी नेगेटिव? यस, APS कैन बी नेगेटिव, क्योंकि शुरू में APS S माइनस में होता है तो S अपॉन Y भी माइनस में आएगा. APC and MPC are two parameters. The value of which parameter can be greater than 1? APC और MP में से कौन सा वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है? APC. बिकॉज APC इसका मतलब होता है C अपॉन Y और इनिशियल लेवल्स पे C ग्रेटर देन Y होता है. आप देखिए शेड्यूल निकाल के देख लीजिए, शुरू में C ग्रेटर देन Y है तो APC की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, मगर MPC की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं आएगी. मैंने आपको बताया था कि चेंज इन कंजम्पशन कभी चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता. अगर हम चेंज इन इनकम है 50 तो चेंज इन कंजम्पशन हमेशा रहेगा 40. कैन MPS और MPC एवर बी नेगेटिव? MPS और MPC भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जितनी इनकम बढ़ती है, अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है. कभी इन दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशन नहीं हो सकता. हमेशा del C अपॉन del Y भी पॉजिटिव आएगा और del S अपॉन del Y भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में ये नहीं जाते. अगर एडिशनल इनकम होती है तो एडिशनल सेविंग भी होती है, एडिशनल इनकम होता है तो एडिशनल कंजम्पशन भी होता है. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट. आप लोग इसके नोट्स कंप्लीट करके और होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करें, और जब भी आप स्कूल आए तो अपना होमवर्क चेक करवाएं, नोटबुक सबमिशन करें. हैव ए गुड डे.